Students, we are going to start question number 34A. आप क्वेश्चन में देखिए, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ राहुल एंड कंपनी फॉर 2 years, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है और इन्फॉर्मेशन हमको दी हुई है इसमें। देखिए, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में हमारे पास शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल दिया हुआ है। बिगनिंग में 2,50,000, 2,50,000, एट द एंड इट इज़ गिवन 3,20,000। रिजर्व एंड सरप्लस साल के शुरुआत में 10,000 और एट द एंड ऑफ द ईयर 23,000। करंट लाइबिलिटीज़ ट्रेड पेबल्स में हमारे को 70,000 शुरुआत में और 45,000 एंड में। इन दिस वे we have all the information in the question. So in your book it may be your question number 33 or it may be your 32, it may be your 31 number question. So you just find the question first by these digit Rahul company and see the solution. I have already written these two statement to save the time in the question. You can see that the cash flow statement for the year ended 31st March 2018, A number, that is cash flow from operating activity, net profit before tax. अब हम इसको कैलकुलेट इधर ही कर लेते हैं। ये है आपका ओपनिंग बैलेंस एंड दिस इज आवर क्लोजिंग बैलेंस. इफ यू विल सब्ट्रैक्ट दैट ओपनिंग एंड क्लोजिंग, यू विल गेट here 13,000 rupees. It is your 13,000 rupees. It is clear? Now next, add decrease in current assets. So you can see current assets, we have trade payables here, so I am going to write TRADE, trade receivables here, RECEIVABLE, receivables. So trade receivables में decrease कितने का हो रहा है, we can see it and it is of your 5,000 rupees decrease. Clear? So after that, because no increase in current liability, we will add these two, so it is of your 18,000. It is clear? In this, now we will go for a amount to be subtract. You can see here we will subtract, that is of your less, we have to subtract less increase in current assets, so it will be decrease in current asset. Then here we will have INCREA as your increase in current 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 assets, current your ASSETS assets. You can see here in increase in current assets में inventories में increase आया है, INVENTORY inventory, and that increase is of your 10,000 rupees. Inventories में 10,000 का increase आया है. Then we will have less, decrease in less, you will have to decrease DECREASE, decrease in current CURRENT, current liabilities LIABILITIES, liabilities. So liabilities, we have trade payable in the question, TRADE trade payables, PAYABLES trade payables, and that trade payables is given you 25,000. So if we will add these two, it will be of your subtracting amount 35,000 को हमको क्या करना है, subtract करना है. So after subtracting, we will have net cash in operating activities. So here I am going to write your net cash used in your net cash used in operating, OPERATING, operating activity, ACTIVITIES activities, and this is your negative 17,000. 35 में से 18 चले गए तो negative 17,000 आ गया. ये हमारे पास एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, and this is, we will write it here, negative 17,000. It is clear? Now we will go for a part number B. अब हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, B वाला पार्ट. B वाला पार्ट क्या होता है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. सो इट इज़ योर कैश फ्लो फ्रॉम, FLOWS, flows from FROM, from investing, INVESTING, investing activity, ACTIVITIES activities. In this you can see purchase of non current investment. सबसे पहले देखेंगे हम लोग, हमारे पास है इसमें PURCHASE, purchase of your non current
Purchase of your non-current CURRENT current investment, your INVESTMENTS investment. It is what? It is given you 22,000. Then purchase of fixed assets, PURCHASE, purchase of your FIXED fixed assets, ASSETS assets, and it is given you a 16,000 rupees. It is clear? So we will see calculation of these two will give you net cash used in investing activities. So it is what? Your cash used, net cash used in investing, 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 ACTIVITIES activities. नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में देखिए कितना कैलकुलेशन आ रहा है. इट इज़ -38,000. So here we will write -38,000. Now the part C we will start, that is of cash flow from financing activities. It is cash FLOWS flows FROM from your FINANCING financing activities, ACTIVITIES activities. In this issue of share सबसे पहले होना चाहिए. So we have ISSUE issue of share, इशू ऑफ SHAREA. शेयर इशू कितने हैं हमारे पास? 7,000 के शेयर इशूज़ हैं. अब और कुछ दिया ही नहीं है. इसका मतलब यही वाली एक्टिविटी जब शेयर इशू वाली है, द सेम एक्टिविटी विल बी योर नेट कैश फ्लो फ्रॉम. इट इज़ योर नेट कैश यूज इन फाइनेंसिंग और कैश फ्रॉम FROM फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, FINANCING फाइनेंसिंग, ACTIVITIES एक्टिविटीज़. तो ये हमारे पास 7,000 आया. दैट वी विल शिफ्ट ओवर हेयर. अब इन तीनों को हम प्लस माइनस करेंगे. देन वी विल हैव हेयर नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. इन तीनों को हमने सॉल्व कर दिया. देन हम वी विल गेट हेयर नेट इंक्रीज इन, वी विल गेट हेयर योर नेट इंक्रीज इन INCREASE इंक्रीज इन कैश एंड योर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, योर कैश EQUIVALENT इक्विवेलेंट. कितना हो रहा है देखो? 37 एक्टिविटी कैश इशू एक्टिविटी 70,000. ओहो, आई हैव सीन 7,000. इट इज़ 70,000. सो वी विल हैव अ 70,000 हेयर. सो 38 70 40 बचा, 8 और छूट गया 38, 7 और 38 28 में से 7, देन इट विल बी ऑफ योर 115. सो इट इज़ योर 15. लेट मी सी वंस अगेन, कैलकुलेट वन अगेन. नाउ इन दिस वी हैव टू ऐड. इसमें हमको क्या ऐड करना है? अब इसमें हमको ऐड करना है इंक्रीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगनिंग. हमको ऐड करना है, इसमें हमको ऐड करना है कैश एंड आवर कैश इक्विवेलेंट EQUIVALENTS इक्विवेलेंट्स. कैश एंड EQUIVALENTS इक्विवेलेंट्स. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कब का? बिगनिंग का. कब का? BEGINNING बिगनिंग का. तो बिगनिंग का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारे पास कितना आ रहा है? देखिए यहाँ पर दो अमाउंट कैलकुलेट करने पड़ेंगे. इस वाले अमाउंट के लिए मैं एक छोटा सा स्टार बना देता हूँ. इस स्टार को हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं. बिगनिंग में क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पर देखिए कैश एंड बैंक कितना दिया हुआ है हमारे को? यहाँ पर दिया हुआ है कैश एंड बैंक. कितना दिया हुआ है? बैंक दिया हुआ है हमारे को 30,000 का दिया हुआ था. पहले 30,000 का दिया था. अब इसमें हमको प्लस कर लेना चाहिए योर करंट इन्वेस्टमेंट्स. हमारे पास CURRENT करंट इन्वेस्टमेंट, INVESTMENT करंट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कहीं हमने लिए नहीं है अभी तक करंट इन्वेस्टमेंट हमारे. तो इसका मतलब बिगनिंग में हमारे पास कितना हो गया? 40. अब एंड का भी देख लेते हैं बेटा. बैंक में देख लेते हैं हमारे पास कितना था. बैंक में हमारे पास था 47,000. ये कब का है? ये BEGINNING बिगनिंग का निकाला. अब ये वाला हम निकाल के देख लेते हैं एंड का. 47 था हमारे पास, 47,000. अब करंट इन्वेस्टमेंट कितना है हमारे पास?
8,000 रुपीज़ है, तो हमारे पास टोटल आना चाहिए ये दोनों को ऐड करके 55,000 रुपीज़ आना चाहिए। इट इज़ क्लियर। सो 55 आना चाहिए। अब चेक कर लेते हैं, हमारा आंसर भी यही वाला होना चाहिए। नाउ वी विल राइट हियर 40,000। हमने इसमें क्या किया, 40,000 को ऐड कर दिया। सो आवर आंसर एट द एंड ऑफ दिस वी विल हैव हियर योर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट EQUIVALENTS at the end, your at the end of the period, at the end of period, PERIOD period। कितना आ रहा है देख लेते हैं हम इसको कैलकुलेट करके। 55,000 रुपीज़ आ रहा है। तो यू कैन सी वन मोर थिंग, यहाँ पर 55,000 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास आया, और यहाँ पर भी हमने कैलकुलेट किया था। तो देखिए ये वाला आंसर और ये वाला आंसर हमारा टैली कर रहा है 55,000। दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। यू कैन नोट इट डाउन नाउ।